ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radha Gopinath, Jaya Radha Gopinath. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radha Gopinath, Jaya Radha Gopinath. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra Maya. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol,
Hari Bol, Hari Bol. Can I start now? Yes, Mataji, you can start. Yes. Raghupati Raghav Raja Ram, Patit Pavan Sitaram. 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 Sitaram, 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 Jaya 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 Sitaram. Raghupati Raghav Raja Ram, Patit Pavan Sitaram. Raghupati Raghav Raja Ram, Patit Pavan Sitaram. Jaya Raghunandana Jaya Siya Ram, Janaki Vallabha 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 Sitaram. Sitaram, 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 Jaya 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 Sitaram. Shri Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Hanuman. Shri Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Hanuman. Shri Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Hanuman. Shri Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Hanuman. Sitaram, 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 Jaya Sitaram. 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 Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Hanuman. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Hanuman. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Hanuman. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Hanuman. Sitaram, 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 Jaya Sitaram. Sitaram, 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 Jaya Sitaram. Raghupati Raghav Raja Ram, Patit Pavan Sitaram. Raghupati Raghav
हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। जय जय श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
प्रभुपादा जय प्रभुपादा गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय जय शिला प्रभुपाद की जय 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 प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल। कि रामायण इतना डीप है कि आप उस वन लाइफ टाइम इज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड द फुल कंप्लीट रामायण इन इट्स फुल इनसाइट। इसके उसको पूरी तरह से समझना जो है एक जन्म ही शायद कम पड़ जाए। सो एक चीज प्रताप रुद्र प्रभु, नो वन थिंग दैट स्टक मी, इफ यू अलाउ मी, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इसमें अलग अलग रामायण में पर्सनालिटीज हैं और हर पर्सनालिटी का अपना एक खूबी है और सब लोगों को कोई ना कोई पर्सनालिटी उसमें अच्छा लगा होगा। जैसे हम समझो कोई मूवी देखते हैं, चित्रपट कोई फिल्म देखते हैं, तो उसमें हमको कोई पर्सनालिटी जो है वो हमारा फेवरेट होता है। आई रिमेम्बर कॉलेज डेज में हम हमेशा बोलते थे कि हु इज योर फेवरेट, किसका एक्टिंग ज्यादा अच्छा लगा, किसका रोल अच्छा लगा, किसका कैरेक्टर अच्छा लगा, किसका स्टोरी। तो रामायण ऑल्सो हैज सो मेनी फैसेट्स, इतना सारे अलग अलग व्यक्तित्व हैं उसमें और अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग चीजों के लिए फेमस है और अलग चीजों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जटायु हुआ तो सैक्रिफाइस का मूड हो गया, भरत महाराज सैक्रिफाइस का मूड हो गया, सीता मैया सैक्रिफाइस का मूड हो गया। सैक्रिफाइस में भी इतने सारे एग्जाम्पल्स। तो इसमें एक एग्जाम्पल है जो नो इन माय ओन पर्सनल लाइफ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। तो मैं सोचा इस पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा इन द टाइम दैट वी हैव एक थोड़ा सा मैं बताता हूँ। और ऐसे आप लोग भी जो भक्त लोग हैं, आप लोग भी सोच सकते हैं इन द मीन टाइम कि आपके जीवन में रामायण में ऐसे कौन से पर्सनालिटी है जिससे आप ज्यादा प्रभावित हुए हैं या जिससे आपने कुछ सीखा है। तो जो पर्सनालिटी का मतलब द वन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, द वन दैट आई वाज वेरी इंस्पायर्ड, मुझे जिससे ज्यादा प्रेरणा एक ऐसे व्यक्ति, ऑफ कोर्स मेनी पर्सनालिटीज बहुत सारे है और सबका अलग अलग एक प्रेरणा मिलता है, लेकिन एक जो पर्सनालिटी है जो मुझे बहुत ज्यादा याद आते हैं वो है जाम्बवान। जाम्बवान जो है ये रामायण में कोई एकदम मेन कैरेक्टर नहीं है, वो मतलब ही इज लाइक अ सेकंड लाइन सेट ऑफ हीरोज। तो अगर युद्ध में भी देखें तो वो रहते हैं और वो एडवाइस करते हैं और वो बाद में फिर ही विड्रॉज इनटू द बैकग्राउंड। मतलब आप फिल्म में उनको एकदम आगे नहीं देखोगे, फोकस जो है कैमरा का उनके ऊपर बहुत कम आता है और फिर कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो जाम्बवान का जो है ये पर्सनालिटी मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि जब रामचंद्र जी सीता मैया का अपहरण होता है और रामचंद्र जी ढूंढने के लिए निकल रहे हैं और उनका सुग्रीव के साथ मित्रता होता है। सो आफ्टर देयर फ्रेंडशिप पैक्ट सुग्रीवा चातुर्मास के बाद सारे विश्व में अपनी जो सेना है, वानर सेना, उसको बेचते हैं और बोलते हैं कि हमको सीता मैया को ढूंढना है। तो एक जो टुकड़ी है जो साउथ की तरफ, जो दक्षिण भारत और दक्षिण की ओर जाता है, उसमें रहते हैं हनुमान, अंगद और जाम्बवान। और जब ये टुकड़ी का कैंपेन चलता है और उनको 1 महीने में वापस आना होता है और 1 महीना हो जाता है, लेकिन सीता मैया का कोई नो ट्रेस ऑफ कहाँ है सीता मैया, कोई खबर नहीं। तो सब मायूस हो जाते हैं और फिर जाके उनको पता चलता है कि हाँ ठीक है, लंका में रावण सीता मैया को ले गए हैं। और जब ये पता चलता है तो वो आते हैं और समुद्र के तट तक आकर फिर बैठे हैं सब लोग और सोच रहे हैं
कि ये जो लंका है ये तो यहाँ से कहीं दूर है, बहुत दूर है। ये 100 योजन जो दूर लंका है, इसमें हम जाएंगे कैसे, और जाएंगे तो कंफर्म कैसे करेंगे? रावण का जगह है, एनिमी टेरिटरी, एंड रावण कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। वो ही इज अ पर्सन हु इज नोन फॉर टू थिंग्स। इतना क्रूएल है कि देवी देवताओं को भी अपने सिंहासन के नीचे, मतलब शनि को भी अपने पैरों के नीचे, इतना पावरफुल पर्सनालिटी। आंख उठाने से सब देवी देवता जो है, इंद्र चंद्र सब डर जाते थे। ऐसे व्यक्ति के, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई जैसे आज के तारीख में अगर कोई डॉन है तो डॉन के एरिया में जाके वहां पे कुछ करके आना है तो कैसे फीलिंग होगा? और जाना है कैसे, ऐसा कि नहीं कि पूरे फोर्स के साथ जाना, अकेले जाना है। और जाना भी है तो ठीक है, लेकिन जाना है उससे पहले तो इतना बड़ा एक छलांग लगाना है। कौन जाएगा, कैसे जाएगा, ये सोचकर सब बैठे हैं वानर सेना समुन्द्र के तट पे, और सब मायूस बैठे हैं। और कोई जब पूछ रहे हैं कि कौन जाएगा तो सब बोल रहे हैं कि मैं इतना मार सकता हूँ, इतना जा सकता हूँ, 20 जा सकता हूँ, 40 जा सकता हूँ, 50-80 योजन तक जा सकता हूँ। कोई बोल रहा है कि मैं 100 योजन जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता हूँ। और ये मुश्किल समय में द ट्रू क्वालिटी ऑफ अ लीडर, एक लीडर का काम जो होता है वो ये नहीं है कि वो 100 योजन छलांग लगाए। एक अच्छे लीडर का क्वालिटी ये है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को स्पॉट करे, आइडेंटिफाई करे, उसमें ढूंढ निकाले जो एक बड़ा काम कर सके। तो जामवान प्लेज दैट रोल, ही प्लेज दैट रोल ऑफ आइडेंटिफाइंग द हनुमान विद इन हनुमान। हनुमान तब तक जो है एक ऑर्डिनरी अंगद जो टोली का लीडर है, उनके साथ गया हुआ एक व्यक्ति है। द ओनली हाईलाइट बिफोर दैट इज दैट उन्होंने रामचंद्र जी और सुग्रीव को मिलाया था, और रामचंद्र जी ने जो है उनको सीता मैया का जो अंगूठी का जो ये है वो उनको दिया था। उसके अलावा हनुमान के ऊपर ये पूरे फिल्म में अभी तक कोई फोकस नहीं है। लेकिन जैसे ही जाम्बवान जो है, उनको पता चलता है अरे हनुमान जो है यहाँ पे इतना श्रमता रखने वाला एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन वो शांत बैठा है, तो हनुमान के अंदर का जो पोटेंसी है, जो शक्ति है, उसको जागृत करने का काम जो है जाम्बवान करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग रामनवमी का मना रहे हैं। तो सिद्ध स्वरूप प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से क्वालिटी ऑफ अ लीडर जाम्बवान के एपिसोड में से हमें बताया कि जाम्बवान ऐसे एक लीडर है जो दूसरों के अंदर कौन सी क्षमता है, हनुमान जी को जैसे वो मदद करते हैं, उनके अंदर जो शक्ति था जो वो भूल चुके थे बचपन में, सूर्य तक कूद कर सूर्य को भी खाने के लिए चले गए थे। उस समय पर बाकी देवी देवताओं ने जाकर कंप्लेन किया और फिर उस समय पर वो भूल गए थे, लेकिन फिर से उसको याद किया। तो मैं तब जब प्रभु जी बोल रहे थे तब मुझे याद आया कि प्रभुपाद जी भी हमारे ऐसे ही एक लीडर है
प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि कैसे आपने ये सब पूरा संस्था इतना बड़ा ये किया। प्रभुपाद ने कहा कि जो प्रभुपाद को नए नए लोग मिले थे उस समय पर, ये सब लोग का अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, किसी में कोई ऐसी योग्यता नहीं थी। तो किसी ने कहा कि प्रभुपाद ने क्या किया, जैसा कोई एक लकड़ा है, एक लकड़ा ऐसे पड़ा है और एक चीज कोई एक स्ट्रिंग ऐसी पड़ी है, तो जैसे एक वीणा या कोई एक इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए अलग अलग ऐसा टुकड़ा पड़ा रहता है, तो प्रभुपाद ने सब टुकड़े को एक साथ लाकर एक बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट भगवान कृष्ण के आनंद के लिए ऐसा बजाया। तो किसी के अंदर कोई योग्यता कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभुपाद ने एक एक के इतना भक्ति का प्रेरणा दिया प्रभुपाद ने उनको, और हर एक को भगवान कृष्ण के लिए तुम ये करो, तुम ये करो, प्रोत्साहन करके, जो सोच भी नहीं सकते थे कि हम कुछ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। प्रभुपाद ने उनको प्रोत्साहन करके उनके अंदर से इतना अच्छे अच्छे गुणों को बाहर निकल कर लाए। तो वास्तव में हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छा बुरा दोनों रहता है, द डिवाइन एंड द डिमोनियक नेचर, जैसा भगवान गीता में बताते हैं 16वें अध्याय में। हर एक व्यक्ति के अंदर, या महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज हमेशा द गुड डॉग एंड द बैड डॉग, ये उदाहरण कई बार मैंने महाराज जी के मुख से सुना है कि हर एक के हृदय में ये दो कुत्ता रहता है, जो अच्छा कुत्ता भी भौंकता है और बुरा कुत्ता भी भौंकता है। लेकिन अगर हम एक शुद्ध भक्त के संग में आते हैं और उसका संग लेते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, उनका संग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनके संग में आने से ही तो हमारा जो बैड डॉग होता है अपने आप से वो दब जाता है, और जो हमारा गुड क्वालिटीज है, जो हायर नेचर है, जो वास्तव में हमारा जो स्वरूप है, वो अपने आप से ऊपर उभर कर आता है। और देखते ही देखते इतना कुछ हम भगवान की सेवा में अलग अलग जो भी भगवान ने हमें गुण दिया है, उसको हम भगवान की सेवा में लगाकर हम वास्तव में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हमारा जीवन यशस्वी बन जाता है। तो वास्तव में एक अच्छा भक्त के संग में आकर वो बहुत जरूरी है, एक लीडर। तो मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद के जीवन में ऐसे प्रभुपाद ने कई लोगों को टच किया, और परम पूज्य राधानाथ महाराज के भी जीवन में महाराज के संग में आने से कितने सारे लोग थे जो सोचते थे मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन महाराज के संग में आकर महाराज ने एंकरेज किया, एम्पावर किया उनको, और वो लोग इतने सारी सेवा कर रहे। हाँ, जैसा कुछ दिनों पहले मैं श्रीदामा प्रभु से बात कर रहा था, तो श्रीदामा प्रभु बता रहे थे मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट व्यक्ति था। इंट्रोवर्ट अर्थात श्रीदामा प्रभु बता रहे थे कि फोन भी अगर बजता था मेरे घर पे तो मैं फोन उठाने के लिए डरता था। क्यों? क्योंकि मैं सोचता था अरे सामने वाले व्यक्ति को अभी क्या बात करूंगा, मुझे तो लोगों से बात करने को बहुत डर लगता है, तो फोन का आवाज सुन के मैं डरता था। लेकिन वो बोल रहे थे कि महाराज का संग मिला और फिर महाराज ने कहा कि तुम्हें अभी प्रचार करना है। मैंने बोला महाराज मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हूँ, मैं नहीं करूंगा, ऐसे करके कई बार बोले। लेकिन महाराज ने बहुत एंकरेज किया, नहीं नहीं हमें जो मिला है हमको शेयर करना चाहिए, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, ऐसे कहे के करके महाराज ने बहुत एंकरेज किया। और आज के तारीख में श्रीदामा प्रभु का अगर हम सुनेंगे तो हम डर जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंटली, इतना शक्ति के साथ, इतना दृढ़ विश्वास के साथ वो भगवान के कथा का प्रचार करते हैं और इतने सारे भक्त को भक्ति में प्रोत्साहन करते हैं। तो ये प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज के संग में आने से किसके मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणम्। अगर गुरु महाराज की कृपा है तो जो गूंगा व्यक्ति है, मूकम करोति वाचालम, गूंगा व्यक्ति भी वो बहुत सुंदर सुंदर कविताएं बोल सकता है, और जो लंगड़ा व्यक्ति है वो भी पहाड़ को चढ़ सकता है। तो ऐसे तो प्रभु जी जब बता रहे थे कि जाम्बवन एक बहुत ऐसे लीडर की तरह है जो हनुमान और बाकी जो कम्युनिटी में और जो भक्त है, एक एक के अंदर क्या गुण है जिसको वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, उसको देखकर छोटा सा स्पार्क जैसा होगा गुण,
लेकिन उसको फैन करके वो स्पार्क को फायर बनाकर एंकरेज करके उसको आगे बढ़ाकर उसको भगवान की सेवा में उसको लगाना। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये पॉइंट प्रभु जी का। इच्छा थी कि और सुनूं प्रभु जी के मुख से, लेकिन प्रभु जी ने सेवा दी है अभी बोलने का, तो इसलिए कुछ थोड़ा बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं बाल कांड के ऊपर पढ़ रहा था। जैसा कि हम जानते हैं रामायण में अलग अलग कांड है, 24,000 श्लोक है रामायण में। तो बाल कांड जहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का जन्म के बारे में, वहां से लेकर उनका विवाह तक पूरा प्रसंग वहां पर दिया है। उसके बाद फिर अयोध्या कांड के बारे में आता है, दूसरा कांड, जहाँ पर अयोध्या का पूरा राम को दशरथ महाराज पहला राज सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। उसके बाद फिर जब मंत्रा और कैकेयी एक साथ आ जाते हैं और पूरा प्लान बनता है कि दशरथ महाराज के पास जाकर राम को 14 साल वनवास के लिए कहेंगे, और फिर वो पूरा प्रसंग अयोध्या कांड में वहां पर आता है। फिर प्रभु रामचंद्र वनवास के लिए जाते हैं वहां पर, तो अरण्य कांड जो तीसरा कांड है, राम भगवान जी जो वनवास में जाते हैं और चित्रकूट और वहां का पूरा एपिसोड दंडकारण्य अरण्य कांड में। फिर किष्किंधा कांड में, जहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी जो है सुग्रीव को मिलते हैं, सुग्रीव को मिलकर मित्रता होती है उनका, तो वो पूरा किष्किंधा कांड में वर्णन है। उसके बाद फिर युद्ध कांड एक आता है जहाँ पर युद्ध होता है, और एक उत्तर कांड जहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी को फिर से राजा बनकर उनको अयोध्या का राजा करके घोषणा की है। तो ऐसे अलग अलग कांड में बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आता है रामायण में, और बताते हैं कि रामायण में जो मुख्य जो विषय आता है शरणागति का विषय के बारे में, कई बार अलग अलग एपिसोड के माध्यम से, कथा के माध्यम से शरणागति के बारे में भी एक मुख्य संदेश है रामायण में, कि प्रभु रामचंद्र जी का अगर कोई शरण को प्राप्त करता है तो वास्तव में प्रभु रामचंद्र जी तैयार है उस व्यक्ति को अपना शरण देने के लिए। तो बहुत ही एक फेमस वर्स जो रामायण के अंत में आता है, जहां पर प्रभु रामचंद्र जो विभीषण के शरणागति के संबंध आता है, तो वहां पर रामचंद्र जी कहते हैं, सकृत एव प्रपन्नोयम तव आस्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतं मम। सकृत एव, सकृत मतलब एक बार, प्रपन्नोयम तव अस्मि, मैं आपका हूं प्रभु, तव अस्मि। अगर हम एक बार हृदय पूर्वक प्रभु रामचंद्र जी के सामने आकर कहते हैं कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, तव आस्मि इति याचते, अगर कोई याचना करता है, अभयम सर्वदा तस्मै, तो अभयम, अभयम मतलब मैं उसको पूरा भय से मुक्त करता हूँ, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम, तो बोलते ये मेरा व्रत है कि मैं उसको अभय प्रदान करता हूँ। तो ये वास्तव में प्रभु रामचंद्र जी के अनेक गुण है जो रामायण के माध्यम से हम अलग अलग कांड में हम सुनते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, और हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि प्रभु रामचंद्र जी जो है वो कहते हैं कि रावण ने जीवन में बहुत सारे पाप क्यों न किया हो, लेकिन अंत के समय पर भी अगर रावण लाकर मेरी शरण लेना चाहता है तो मैं उसको शरण देने के लिए तैयार हूँ। तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग हाईलाइट है भगवान का जो भक्त वात्सल्यता का गुण है, या भगवान का जो शरणागति देने का गुण है। हालांकि रावण जैसे व्यक्ति है जिन्होंने बहुत सारा प्रभु रामचंद्र को दुख दिया है, लेकिन युद्ध के पहले भी उस समय पर भी वो रावण को शरणागति स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर रावण तैयार है तो प्रभु उनको माफ करने के लिए तैयार है। तो ये
शरणागति का जो गुण है वो सारे वैष्णवाचार्य अपने रामायण के टीका में बताते हैं कि ये मुख्य गुण रामायण से निकल कर आता है। तो मैं बाल कांड पढ़ रहा था, जो 6 कांड में से जो पहला कांड है, जहां पर हम रामायण का जो शुरुआत है उसके बारे में हम देखते हैं बाल कांड में। और जो वहाँ की शुरुआत होती है जहां पर हम देखते हैं कि जो वाल्मीकि ऋषि है, वाल्मीकि ऋषि का जो पूर्व जो उनके जीवन में वाल्मीकि ऋषि की कथा के बारे में आती है, जहां पर वाल्मीकि ऋषि एक हंटर तो वो रहते हैं और जंगल में जाकर अलग अलग प्राणियों को आधा मारना, उनका नाम रत्नाकर के नाम से उनको बताया गया है। तो आधे प्राणियों को आधा मार कर और उनको मरते अधमरा देखते देखते वो प्राण जाता था, तो उनको उसमें आनंद आती थी। तो ये उनका व्यवसाय था, शिकार करना। तो एक बार नारद मुनि आकर उनको मिलते हैं और उनको कहते हैं कि रत्नाकर, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो तुम इतना घोर पाप कर रहे हो और पूरा ये जानवरों को आधा आधा करके आप मार रहे हो और उनको मरते हुए देख रहे हो तुम? इसका नतीजा तुम्हें पता है? मृत्यु के बाद तुम्हें बहुत इसका दंड आपको चुकाना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो जो व्यवसाय है ये हमारा पूर्वजों से ये व्यवसाय चलते आ रहा है। मेरे पिता, मेरे दादा, सब लोग ये व्यवसाय करते हैं और हम शिकार कर कर जानवरों को मारते हैं और उससे जो भी धन की उत्पादन होती है उससे हमारा जीवन चलता है। तो बोले कि नहीं, ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो और आप जाकर अपने परिवार से पूछो कि आपके परिवार को रक्षा करने के लिए आप इतना सारा पाप कर रहे हो, क्या इसका जो पाप कर्म आएगा क्या आपके घर वाले इसको बांट कर लेंगे, जिनको खुश करने के लिए आप इतना कर रहे हो? तो बोलता है हाँ, मैं जाकर पूछता हूँ। फिर वो जाता है घर में और अपने परिवार से जाके बोलता है कि ऐसे ऐसे बात है कि मैं ये शिकारी का व्यवसाय कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को संभालने के लिए, परिवार के लिए। लेकिन नारद मुनि ने आज मुझे बताया कि इससे बहुत पाप कर्म लगेगा, तो क्या आप लोग मेरे पाप कर्म का भागीदार बनोगे? तो उनके घर वालों ने कहा नहीं, सॉरी, हम नहीं कर सकते। आपने जवाबदारी लिया हमारा, तो इसीलिए आप जो कर रहे हो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा, हम इसमें आपका कोई सहायता नहीं करेंगे। ऐसा करके वो लोग इनकार करते। उस समय पर जो रत्नाकर है उनका ऐसे बोलते हैं ना, उनका ऐसे ट्यूबलाइट जल गया या एक ऐसा अंदर उनको तभी अनुभूति हुआ कि अरे, मैं अभी इनके लिए इतना सब कर रहा हूँ लेकिन ये कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। तो फिर वो नारद मुनि के आकर कहते हैं कि गुरुदेव, ये साधु महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे सही रास्ता आपने बताया, अभी मैं क्या करूं? तो फिर नारद मुनि उनको राम नाम बताते हैं कि आप जो है प्रभु रामचंद्र जी का नाम जप करिए। लेकिन वो राम नाम नहीं बोल पा रहे, तो बोलते कठिन है। तो फिर उनको उल्टा नाम बताते हैं कि आप जो है मरा मरा बोलकर नाम जप कीजिए। तो वो मरा 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 करके ऐसे बोलते हैं और देखते ही देखते वो प्रभु रामचंद्र जी का नाम। तो नारद मुनि की कृपा होती है कि किसको कैसे किस समय पर भगवान के नाम से जोड़ना है और जीवन का सर्वोत्तम फल देना है, ये नारद मुनि जैसे महान साधु संतों को पता है। ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशे स्मर्तव्यम सततम विष्णु स्मर्तव्यो न जातुचित सर्व विधि निषेधास्युर एतयोर एव किंकर। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमेशा भगवान विष्णु का नाम को स्मरण करना चाहिए। स्मर्तव्यो न जातुचित, कभी भी हमें एक सेकंड के लिए भगवान का नाम को नहीं भूलना है। सर्व विधि निषेधास्युर, सारे नियम जो है डूज एंड डोंट्स, ये 2 रूल के अंडर में आता है। जो भी नियम है शास्त्र में, लेकिन अंत में सबका पर्पस एक ही है, हमेशा भगवान का नाम जपना है और कभी भी हमें भगवान का नाम को नहीं भूलना है। तो नारद मुनि की कृपा से जो रत्नाकर है वो इतने बड़ा ऋषि बन गए, वाल्मीकि ऋषि। वो एक दिन जब बैठे हुए होते हैं, उस समय पर जब नारद मुनि उनके पास आते हैं,
तब वाल्मीकि ऋषि नारद मुनि को पूछते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है क्या इस धरती पर जिसके अंदर सारे अच्छे गुण है, जो जिसके पास सब धन है, जो दिखने में भी सुंदर है, जो बहुत यशस्वी है, जिसके अंदर वैराग्य है, जिसका चरित्र बहुत अच्छा है, और सारे गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? ऐसा करके वो नारद मुनि को पूछते हैं, और नारद मुनि उसके उत्तर में वो प्रभु रामचंद्र जी के बारे में उनको बताते हैं कि हाँ, वास्तव में ऐसे एक जन है जिनका नाम है प्रभु रामचंद्र, और प्रभु रामचंद्र जी के बारे में पूरा वो गुणगान करते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का जो सुंदरता है उसके बारे में वर्णन करते हैं। उनके कमल जैसे नयने है, उनका जो सुंदर जो उनके नाक है, उनका जो छाती है बहुत ही चौड़ा है, लंबे लंबे उनके हाथ पैर, उनकी जो ऊंचाई है, ऐसे एक एक अंगों के बारे में नारद मुनि जो है वो वाल्मीकि ऋषि को भगवान रामचंद्र जी के अनेक अनेक गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। और वाल्मीकि जी ये सुनकर बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं, और फिर वो प्रभु रामचंद्र जी के बारे में वो मनन करने लगते हैं उस समय पर। और फिर वो सब पूरा होने के बाद एक दिन जब वाल्मीकि ऋषि जो है वो वहां पर नदी के तट पे वहां पर वो जाते हैं, वहां पर एक दिन वाल्मीकि ऋषि जब देखते हैं कि ये जो जो पक्षी है, दो पक्षी है, क्रौंच पक्षी जो क्रेन के नाम से भी उनको बताते हैं, क्रौंच पक्षी जो मैथुन कर रहे हैं, उस समय पर एक शिकारी जो है निषाद बहुत ही नीच योनि का, वो आकर वो बाण चलाता है और उस मैथुन की अवस्था में इस क्रौंच पक्षी को वो एक दोनों में से एक को वो मारता है, और दूसरा पक्षी जो है अपना जो प्रेमिका को देख करके मर चुका है वो भी बहुत दुखी हो जाता है, वो भी वहां पर प्राण त्यागता है। उस समय पर जब वाल्मीकि ऋषि ये देखते हैं तो उस निषाद राजा को, उस वो निषाद व्यक्ति को देखकर बोलते हैं कि कितना बड़ा तुमने ये पाप का कार्य किया है। बहुत गुस्सा हो जाते हैं वाल्मीकि ऋषि, गुस्से में आकर उसको कहते हैं ये बहुत ही गलत कार्य तुमने किया है, दो पक्षी मैथुन कर रहे हैं और उस समय पर आपने ये कार्य किया है, तो मैं आपको श्राप देता हूँ करके गुस्से में वो उस निषाद राजा को श्राप देते हैं। और फिर वाल्मीकि ऋषि सोचने लगते हैं कि अरे ये जो मैंने श्राप इसको दिया ये बहुत ही एक श्लोक के रूप में आया। तो उस समय पर वो जब सोच रहे थे कि ये शोक का जो मेरा अवस्था था, इस शोक में मेरे मुंह से एक बहुत सुंदर श्लोक निकला है, और उसके पहले उन्होंने रामायण के बारे में नारद मुनि से सुना हुआ भी रहता है, तो ये मनन कर रहे थे कि इसका तात्पर्य क्या है, ये पूरा इंस्टेंट इसके बारे में वो मन में विचार कर रहे थे। और उस समय पर ब्रह्मा जी स्वयं उनके सामने आते हैं और उनके सामने आकर उनको वाल्मीकि ऋषि को कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि आप जो है ये रामायण का पूरा आप इसको लिखिए, लिखकर आप दूसरे को बताइए, ताकि आगे चलकर लोगों को पता चलेगा प्रभु रामचंद्र जी के बारे में। पूरा जो रामायण आपने सुना है नारद मुनि से, उसको आप पूरा लिखिए। और ब्रह्मा जी ये बताकर वहां से चले जाते हैं। तो उस समय पर जो वाल्मीकि ऋषि है वो सोचते हैं कि मैं किसको मैं बताऊं रामायण के बारे में। तो उस समय पर वो देखते हैं आसपास में ही दो बच्चे, लव और कुश, जो सीता माता और प्रभु रामचंद्र जी के पुत्र है, लेकिन सीता माता कई दिनों से अभी अग्नि परीक्षा के समय पर लक्ष्मण जी उनको यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में छोड़कर गए थे, तो ये बच्चे दोनों वहीं पर घूम रहे थे। तो ये दोनों बच्चे थे वहां पर। तो वाल्मीकि ऋषि ने सोचा कि ये दो बच्चे वास्तव में सही योग्य व्यक्ति है जो प्रभु रामचंद्र जी का जो रामायण है उसको सुनकर समझकर अलग अलग जगह पर भारत भर में जाकर उसको वो गा सकते हैं, और आगे चलकर भविष्य में
अनेक अनेक लोगों को उसका फल मिलेगा, ऐसे करके वो सोच रहे थे। और उन्होंने फिर रामायण के बारे में जो भी सिखाना था उनको, ये सब कुछ उन्होंने पूरा ये दोनों बच्चों को, लव और कुश, इनको दोनों को उन्होंने सिखा दिया। और फिर लव और कुश जाकर सब जगह पर रामायण का जो गान है उसको गाने का वो शुरुआत करते हैं। तो उस समय पर फिर जब रामायण की शुरुआत होती है उसमें प्रसंग आता है जहां पर अयोध्या, अयोध्या नामक जो नगरी है, अयोध्या मतलब जो युद्ध करके कोई उसके ऊपर जीत को प्राप्त नहीं कर सकता है, अयोध्या, अनकॉन्करेबल। इतना पावरफुल जो शहर अयोध्या के बारे में वर्णन किया गया है, कई पन्ने पन्ने में अयोध्या नगरी का गुणगान किया गया है कि इतना सुंदर जगह है अयोध्या। रास्ते के बारे में वर्णन किया है कि जैसे घर में हम रोज घर को झाड़ू पोछा मारकर साफ सफाई करते हैं, एकदम साफ रखते हैं घर को, उसी प्रकार से अयोध्या में जो रास्ते थे, हाथी जाते थे और अपने सूंड में उस पानी को लेकर उस रास्ते को ऐसा परफ्यूम वाटर से ऐसा स्प्रिंकल करते थे। रास्तों को पूरा साफ किया जाता था रोज 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 वहां पर। और जो वहां का जो अलग अलग जो गेट हुआ करता था, बहुत सुंदर और कीमती आभूषणों से, सोना चांदी हीरा इत्यादि ये सबसे पूरा सजाया हुआ था। तो एक एक जो अयोध्या की चीज के बारे में जो वर्णन किया है, वास्तव में बहुत ही सुंदर उसका वर्णन बताया है कि कोई भी चीज का कमी नहीं था अयोध्या में। दशरथ महाराज के निगरानी में अयोध्या सब तरीके से सामर्थ्य था, कोई भी चीज में अयोध्या में कमी नहीं थी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी बताया है कि दशरथ महाराज जो थे दुखी थे एक चीज के लिए। वो एक चीज क्या है कि उनके पास कोई पुत्र नहीं था। परंतु किंतु तो हम देखते हैं कि कैसा है कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ है जीवन में। वैसे बताया दशरथ महाराज के पास सुंदर पत्नियां थी, बहुत सारा जमीन था, 8 सुंदर मंत्री थे, लेकिन फिर भी दुखी थे। तो ये भौतिक जीवन का के बारे में बताया जाता है कि व्यक्ति के पास सब कुछ रहता है, लेकिन कहीं पर तो एक किंतु, बट, जो बट आता है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये कमी है। तो ऐसे ही सब कुछ होने के बाद जब एक चीज कमी होता है तो उसमें व्यक्ति का पूरा चेतना, पूरा मन जो है, वो जो चीज नहीं है उसके वजह से पूरा दुखी हो जाते हैं हम। तो ये सबके लिए एक प्रकृति में एक सिस्टम बना कर रखा है। सब होने के बावजूद कुछ तो एक आध चीज कमी रहता है जो हम उसके पीछे हम दुखी हो जाते हैं। हर एक के जीवन में अलग अलग तरीके से कहीं ना कोई कुछ अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ कमियां। वो पैकेज है, होलसम पैकेज। कोई कह नहीं सकता है कि मेरे पास जो है सब कुछ अच्छा ही है, नहीं, अच्छा है, लेकिन बट अगर ये होता तो इतना अच्छा हो जाता था। तो कमी सबके जीवन में सिस्टम सेट कर कर रखा है ताकि व्यक्ति पूछे। जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं के आमी केने आमा जाए तापत रहे, कि चैतन्य महाप्रभु, लोग मुझे पंडित कहते हैं लेकिन मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है के आमी, मैं कौन हूं, के में आमार जाए तापत रहे, कि मुझे ये 3 प्रकार का जो आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देवी क्लेश है, ये क्यों आ रहा है, क्यों मुझे दुख आ रहा है, कि ये बात का मुझे पता नहीं है, तो इतना बड़ा पंडित होने का क्या फायदा। तो दशरथ महाराज सोच रहे कि सब कुछ भगवान ने मुझे दिया है मेरे जीवन में, लेकिन एक चीज की कमी है। वो एक चीज ये है कि मेरे पास जो है पुत्र नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो उनका जो मंत्रिमंडल है और अलग अलग लोग उनके मंत्रिमंडल में रहते हैं, तो उस समय पर वो
अपने मंत्री में से सबको पूछते हैं कि अभी मैं क्या करूं जिससे मेरे जीवन में एक पुत्र आएगा। तो फिर सब कंसल्ट करने के बाद वो बोलते हैं अगर आपको पुत्र चाहिए तो आपको जो महाराज अंग के महाराज में रोमपाद महाराज होते हैं उस समय पर अंग देश के, उन्होंने जो किया था, एक शुद्ध ब्राह्मण जो है ऋषि सिंह, उनको बुलाया था। तो जब अंग महाराज और रोमपाद महाराज के वहां पर जब बहुत दिनों तक पूरा फेमाइन आ गया था, कुछ पानी नहीं, ड्राउट पूरा, तो उन्होंने इस ऋषि सिंह को बुलाया था। और जब ऋषि सिंह वहां पर आए तब वास्तव में ये तब स्टार्ट हो गया। तो उसी प्रकार से आप जब इस ऋषि सिंह को आपके राज्य में बुलाएंगे तो आपका राज्य में भी कुछ आगे वृद्धि हो सकता है। तो ये जब प्लान वो सुनते हैं तो उस समय पर वो सोचते हैं कि चलो मैं जो है ऋषि सिंह को यहाँ पर बुलाने का प्रयास करता हूँ, जिससे चल के आगे का सब कुछ सही हो जाएगा। और अलग अलग तरीके से वहां पर ऋषि सिंह को बुलाया जाता है। और फिर ऋषि सिंह आने के बाद जो पुत्र कामेष्टि का यज्ञ होता है, वो यज्ञ में जो पायस निकलता है वो पायस दशरथ महाराज सोचते हैं इसको मैं 4 भागों में बांटूंगा। और उसके वो पहला जो 50% है, वो 50% जो भाग है उसको 50% को पहले वो कौशल्या को खिलाते हैं। उसके बाद अगला जो 50% बचता है वो अगला 50% को और 2 आधा करते हैं, 25% और 25%। और जो 25% है वो सुमित्रा को आधा खिलाते हैं। और फिर जो 25% बचता है वो 25% का और 2 आधा हिस्सा करते हैं। और उसका एक हिस्सा वो कैकेयी को खिलाते हैं। और आके जो और एक बचता है वापिस सुमित्रा को सेकेंड सर्व उसको और खिलाते हैं। तो बताते हैं कि सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या ये 3 मेन क्वींस रहते हैं, 3 मुख्य रानियां दशरथ महाराज की। लेकिन कुल मिलाकर दशरथ महाराज के 353 रानियां, 353 क्वींस होते हैं। तो बोलेंगे अरे ये 350 और रानियां कहां से आ गए दशरथ महाराज के? तो बताते हैं कि परशुराम जी होते हैं जिन्होंने एक प्रण लिया है कि पूरे क्षत्रिय जो भी वंश होते हैं उनको सबको मैं मारूंगा। उनको गुस्सा होता है क्षत्रिय के पूरे इसके ऊपर, तो जहां पर भी क्षत्रिय राजा सबको मारने के लिए वो जाते हैं। लेकिन वो बोलते हैं अगर कोई क्षत्रिय राजा कोई विवाह कर रहा है उस समय पर मैं वो क्षत्रिय राजा को नहीं मारूंगा, बाकी छोड़कर कोई समय पर मुझे दिखेगा तो मारूंगा। ये उन्होंने व्रत लिया रहता है। तो इसलिए परशुराम जी जब भी अलग अलग जगह पर जाते थे और जब समाचार मिलता था दशरथ महाराज को कि परशुराम जी अभी अयोध्या आने वाले हैं, तो दशरथ महाराज डर जाते थे। लेकिन एक कंडीशन उनको पता था कि अगर वो विवाह के लिए राजा बैठा है तो परशुराम जी नहीं मारेंगे। तो उस समय पर बताते हैं दशरथ महाराज जी एक कन्या के साथ विवाह करने के लिए वहां पर उसमें बैठ जाते थे। तो इस प्रकार से जो बाकी 350 जो कन्याएं थी, ये पूरे परशुराम जी के डर से दशरथ महाराज ने एक के बाद एक वो पूरा विवाह उन्होंने चालू किया। तो 3 मुख्य जो उनकी पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और ये 350 परशुराम जी के डर से ये बाकी विवाह उन्होंने किया ताकि परशुराम उनके साथ युद्ध करके कहीं उनको मारने का तैयारी नहीं करे। तो ऐसे करके बहुत सुंदर ये लीला आती है। और फिर वो पायसम खाने के बाद कुछ दिनों के बाद कौशल्या ने बहुत सुंदर तरीके से राम जी को, कौशल्या को राम जी ने जन्म दिया। और फिर बाकी रानियों ने भी दिया। तो ऐसे 4 बच्चों का जन्म होता है
राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो ये चारों के नाम के बारे में बताया जाता है। राम, राम अर्थात जो सबको जो आनंद दे सकते हैं, तो ये प्रभु रामचंद्र जी का नाम, जो दूसरों को आनंद दे सकते हैं। और भरत, भरत अर्थात जो भारवाही इति भरता, जो भार है, जो प्रभु की सेवा करने का जो भार, जो जवाबदारी जिसने बचपन से लिया है, इसीलिए उनका नाम जो है भरत करके पड़ गया। और लक्ष्मणों, लक्ष्मी संपन्नो, तो लक्ष्मण के नाम के बारे में बताया है, जो लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्नो। तो लक्ष्मण जी के बाद सबसे बड़ा संपन्न था लक्ष्मी या संपत्ति, वो थी प्रभु रामचंद्र जी की सेवा करना, तो इसीलिए उनको बताया लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न। और शत्रुघ्न अर्थात शत्रुघ्न ने अपने जीवन में केवल एक शत्रु को मारा, उनका नाम है लवणासुर। लेकिन शत्रुघ्न का नाम शत्रु क्यों पड़ा है? क्योंकि शत्रुघ्न ने अपने अंदर के जो शत्रु है षड रिपु, ये षड रिपु के ऊपर शत्रुघ्न ने विजय को प्राप्त कर लिया, तो इसीलिए शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न पड़ा। तो इसीलिए ये षड रिपु जब तक हमारे जीवन में होते हैं, तब तक जो है हम प्रभु की सेवा नहीं कर पाते, हमेशा वो बाधा बनकर हमारे जीवन में आते रहता है। तो इसीलिए ये चारों भाई की विशेषता ये है कि हर एक अपने अपने नाम के हिसाब से, भरत जो भार ले रहे थे, लक्ष्मण जी जो हमेशा प्रभु रामचंद्र जी की सेवा, लक्ष्मी संपन्न, और शत्रुघ्न अपने शत्रु को हराकर हमेशा शत्रुघ्न अपनी सेवा में लगे हुए रहते, तो सब अपने नाम के हिसाब से पूरा जीवन जीने का प्रयास कर रहे थे। तो बताते हैं कि बहुत बचपन के समय पर ये चारों बच्चे होते हैं, इनको जैसे बच्चों को पालनी में जो सोने का छोटा सा जो स्लीपिंग केज जो आता है, जिसमें उसको खिलाते हैं बच्चों को, उसमें अलग अलग को अलग अलग इसमें डाले रहते हैं और सब बच्चे रोना शुरू करते हैं। तो माताओं को समझ में नहीं आ रहा है, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को क्यों बच्चे रो रहे हैं। तो उस समय पर फिर जो राम जी के बाजू वाला जो सोने का जो क्रेडल है, वहां पर लक्ष्मण जी को रखा रहता है और फिर शत्रुघ्न को भरत के सोने के बाजू में वहां पर रखा है। तो ऐसे चार पास पास में उनको रखा है, लेकिन फिर भी बच्चे रोते। तो उस समय पर लक्ष्मण को उठाकर राम जी के बाजू वाले एक ही साथ में, एक ही झूले में दोनों को सुला दिया और फिर लक्ष्मण को अपने राम लक्ष्मण एक साथ और भरत और शत्रुघ्न उनको एक साथ ऐसे करके, तो चार का भी दो केवल हो गया। तब बताते हैं कि बच्चे दो पूरे शांत हो जाते हैं। तो बचपन से ही जो लक्ष्मण थे उनका जो फोकस क्लियर था, प्रभु रामचंद्र जी की सेवा करनी है और कुछ जीवन का लक्ष्य नहीं है। और शत्रुघ्न का एकमात्र लक्ष्य क्लियर था कि मुझे भरत उनका सेवा करना है और जीवन में दूसरा कोई फोकस और कोई कार्य नहीं करना है। तो ऐसे करके बताया जाता है कि बचपन से ही इनका जो रोल था वो एकदम क्लियर हो गया था। और फिर बताते हैं कि और अलग अलग तरीके से बचपन में जो बच्चे थे अलग अलग तरीके से अपना खेलते हैं। तो जो चार बच्चे थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये भी अपना अपना खेल अपने अपने तरीके से वो कर रहे थे। तो एक बार बताते हैं कि जब 5 साल की आयु होती है, उस समय पर बच्चे खेल रहे थे, जो मिट्टी का गोला को बनाते थे और एक दूसरे के ऊपर वो फेंक रहे थे मिट्टी के गोले को और उसमें आनंद ले रहे थे बच्चे। तो एक दिन जब मंथरा दूर से ऐसे गुजर रही थी और उसका जो पहले से वो कुबड़ जैसा कुब्जा का भी हंच बैक
तो ऐसा झुककर वो चलती थी एक पेक्युलर स्टाइल में। तो मंत्रा वहां पर वो घूम रही थी। तो बच्चे ने क्या किया, वो मिट्टी का जो बॉल है उसको बाण के टोक में उसको लगाया, और जब कुब्जा वहां से अपने मंत्रा चल रही थी तो अपने बाण के उससे उस मंत्रा के उस पर उसको छोड़ दिया, उस मिट्टी का। और वो बाण जाकर वो मिट्टी के बॉल आगे था उसका, वो मंत्रा का जो कुब्बड़ जो ऊंचा साइड था वहां पर वो लगकर वो मिट्टी का बॉल पूरा फट जाता है, और मंत्रा के ऊपर पूरा मिट्टी उड़कर पूरा वो मिट्टी से लथपथ हो जाती है। और सब बच्चे और बच्चों की जो माताएं हैं उस समय पर आती है बच्चों को घर लेकर जाने के लिए, सब लोग ये देखते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन जब मंथरा को ये अपमान हुआ तो मंत्रा ने इसको बहुत ही एक नेगेटिवली लिया, और मंत्रा के अंदर बताया जाता है कई सालों तक ये जो बचपन 5 साल की उम्र में ये जो किया था अंदर, हमेशा मंत्रा ने उसको रखा। पहले ही वो रामचंद्र जी से जलती थी, लेकिन ये होने के बाद और भी जो नेगेटिविटी है प्रभु रामचंद्र जी के प्रति मंत्रा का और बढ़ते गया, और वो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि मैं इसका बदला कभी ना कभी लूंगी। और आगे चलते हम देखते हैं कि जहां पर मंत्रा कैकेयी के माध्यम से वो एक बदला का वो लेती है कैसे, उस प्रकार से वो एक चीज बचपन में 5 साल की उम्र में ये एक लीला के बारे में प्रभु रामचंद्र जी और इनके बारे में बताया जाता है। और एक बार बताते हैं कि वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में अलग अलग तरीके से बहुत सारी जो शिक्षाएं हैं गुरुकुल में, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में बहुत सारी सुंदर सुंदर कलाएं वहां पर वो लोग जाकर सीखते हैं बच्चे। और फिर ये बाण चलाने का जो स्किल ऑफ आर्चरी, ये भी बहुत सुंदर तरीके से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में ही राम लक्ष्मण ये सब वहां पर सीखते हैं। और बताते हैं कि एक दिन एक स्त्री वहां से चलकर जाती है, उसने एक नोज रिंग पहना हुआ रहता है उसके नाक में। तो वशिष्ठ ऋषि ये एरो शूटिंग का ट्रेनिंग बहुत अच्छे से राम और लक्ष्मण को दिए, छोटे बच्चे हैं तो वो सोचते हैं कहीं ना कहीं तो अभी ये हमारा जो एक्सपर्टीज है बाण चलाने का, हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको इधर उधर देखेंगे कितना हमारा परफेक्शन आया ये। तो ये जो स्त्री जिसके नाक में ये रिंग है वो पहनकर जा रही है, तब राम लक्ष्मण से कहते हैं कि आप आपके बाण के शक्ति से ये जो नोज रिंग है उसको अभी जो पोजीशन है उस स्त्री के नाक में उसको थोड़ा और टाइट करके दिखा सकते हैं मुझे। तो फिर एक बाण लक्ष्मण चलाते हैं और वो स्त्री का जो नोज रिंग है जो लूज रहता है वो थोड़ा टाइट करने के बदले बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, और वो स्त्री को बहुत जोर से दर्द होने लगती है। अरे अचानक से ये क्या हो गया। तब राम जी और एक बाण चलाते हैं और वो जो टाइट नोज रिंग है उसको बाण के उससे उसको लूज कर देते हैं पूरा। और वो स्त्री देखती है 2 बच्चे हैं, लेकिन ये 2 बच्चे ये मेरे नाक का जो नोज रिंग है उसके साथ इन लोग कैसा खेल रहे, तो उनको समझ में नहीं आता है। वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है कि आप लोग कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और फिर और एक बाण चलाकर लक्ष्मण जो है उसके नाक से नोज रिंग है उसको पूरा ऐसा निकाल देते हैं और वो ऐसे उड़ के बाहर जाता है। और फिर राम जी और एक बाण चलाते हैं और वो नोज रिंग जो उड़ के गया है वो बाण के टच से वापस से उस स्त्री के नाक में आता है। तो ऐसा एक अलग अलग तरीके से वो अलग अलग जो लीलाएं बचपन में वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रहकर अपनी जो अलग अलग कलाएं सीखी है अलग अलग तरीके से वो उसका प्रयोग कर रहे। तो ऐसे बताते हैं कि वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में बहुत सारी सुंदर कलाएं वशिष्ठ जी ने प्रभु रामचंद्र जी को सिखाया, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको सिखाया, और वो बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में। और फिर बस दशरथ महाराज बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं देखकर कि बच्चे जो है बचपन से ही गुरुकुल में बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं पूरा
प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं भगवान कृष्ण भी 64 कलाएं गुरुकुल में संदीपानी मुनि के आश्रम में जाकर 64 कलाएं सीखते हैं। उसी प्रकार से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी अलग अलग कलाएं विश्वामित्र के वशिष्ठ जी के आश्रम में सीखते हैं। तो उस समय पर एक दिन जब दशरथ महाराज शांति से बैठे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है जीवन में। पहले दशरथ महाराज को दुख था कि बच्चा नहीं है, अभी बच्चे हो गए। अभी दशरथ महाराज को लग रहा है सब कुछ आनंद चल रहा है, लेकिन वापिस दशरथ महाराज के जीवन में और एक टर्निंग आता है, जीवन में और एक मोड़ आती है, जहां पर एक दिन विश्वामित्र मुनि उनके महल में आते हैं और महल में आकर दशरथ महाराज संतुष्ट हो जाते हैं कि इतने बड़े साधु महात्मा हमारे महल में आए हैं, और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। और सब अतिथि देवो भव, अतिथि जब कोई आते हैं घर में उनका सम्मान करना चाहिए, बहुत अच्छे से सत्कार करना चाहिए। तो विश्वामित्र मुनि आए हैं, तो विश्वामित्र मुनि का जैसे ही एक अतिथि का सत्कार होना चाहिए, अच्छे से उनका सत्कार करते हैं। लेकिन उसके बाद में विश्वामित्र को पूछते हैं कि आप क्यों यहाँ पर आए हैं, कृपया करके आपके आने का कारण बताइए। तो उस समय पर विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि मैं जब यज्ञ करता हूँ तब उस समय पर मैं और अनेक सारे ऋषि मुनि गण जब यज्ञ करते हैं तब हमारे जो कुटिया है उसके आसपास में कई बार अलग अलग तरीके के राक्षस आते हैं, और राक्षस आने के बाद उन लोग यज्ञ में नाना प्रकार की बाधाएं डालते हैं, जैसे सुबाहु है, ताटक है, मरीचि है। ये सब लोग आकर हमारे ऋषि मुनियों का यज्ञ को भंग करते हैं। और हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं? विश्व कल्याण के लिए, ताकि आप सब लोग और सारे हमारे प्रजा संतुष्ट रहे। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आपका सहायता लगेगा। हम जो है हम प्रभु रामचंद्र जी को हम लेकर जाना चाहते हैं, ताकि यज्ञ करते समय पर जब ये अलग अलग असुर आकर हमें तकलीफ देंगे तो उस समय पर रामचंद्र जी जो है हमारा रक्षा करेंगे। तो जैसे ही दशरथ महाराज जब इस बात को सुनते हैं कि इतना कठिनाई से बाद जीवन में एक आशा का किरण जागृत हुआ था प्रभु रामचंद्र जी के माध्यम से, और अभी विश्वामित्र मुनि उनको लेकर जाना चाहते हैं, तो उनको बहुत बहुत हृदय में पीड़ा होने लगती है कि ये कैसे द विल ऑफ डेस्टिनी, ये कैसे जीवन में एक डेस्टिनी आता है कि जब कोई चीज हमें मिलता है, जब कुछ चीज नहीं मिलता है तो हम दुखी रहते हैं और मुझे ये चाहिए करके हम आशा करते हैं। वो चीज हमें मिलता है, लेकिन वो मिलने के बाद वापिस हमसे वो चीज छीन लिया जाता है। तो ये उतार चढ़ाव जीवन में, तो दशरथ महाराज बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि मैं प्रभु रामचंद्र जी के सिवाय जी नहीं सकता हूँ, मुझसे मेरे प्राण भी हरण करने को बोलेंगे तो मुझे दुख नहीं लगेगा। तो वो विश्वामित्र मुनि को कहते हैं कि राम बहुत छोटे हैं, ये राक्षसों को नहीं मार पाएगा, मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे लेकर जाइए। लेकिन विश्वामित्र मुनि, तो उस समय पर वशिष्ठ ऋषि वहां पर रहते, तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं पर दशरथ महाराज को कि दशरथ महाराज, ये विश्वामित्र मुनि तो वास्तव में बहुत शक्तिशाली स्वयं है, लेकिन ये आपसे ये सेवा आपसे करवा कर ले रहे, तो आप इनको ना मत कहिए, क्योंकि अगर विश्वामित्र मुनि आपसे नाराज हो जाएंगे तो आपके पूरे परिवार के लिए, आपके पूरे अयोध्या के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और दशरथ महाराज, आपने पहले से वचन दे दिया है विश्वामित्र मुनि को कि जो भी मांगना है मांगो, और अभी वचन देने के बाद आप पीछे मुड़ेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो कृपया करके आप ऐसा मत कहिए। ऐसे करके वशिष्ठ ऋषि दशरथ महाराज को समझाते कि विश्वामित्र मुनि जो मांग रहे आप दे दीजिए। फिर बड़े दुख के साथ कैसे तो दशरथ महाराज जो है प्रभु रामचंद्र जी को विश्वामित्र मुनि के साथ में भेज देते हैं, और विश्वामित्र मुनि वहां से निकल जाते हैं और रामचंद्र जी के साथ जाकर देखते हैं। और दशरथ महाराज को बहुत ही दुख उस समय पर होता है, उनको लगता है कि अभी सब कुछ चला जाएगा, मेरे पास कुछ है नहीं अभी, ऐसा करके वो सोचते हैं। विश्वामित्र मुनि
राम जी को अपने साथ में लेके जाते हैं। राम लक्ष्मण दोनों साथ में हैं और अलग अलग जो जंगल का रास्ता है वहां पर उनको सब सिखाते हैं और अलग अलग जो मंत्र है, कैसे शत्रु को ऊपर अलग अलग मंत्र चलाना है, उसके बारे में उनको शिक्षाएं देते हैं। अलग अलग जो बल, अति बल, अलग अलग जो शक्तिशाली मंत्र है उसके बारे में उनको उसको सिखाते हैं और बताते हैं कि जो शक्तिशाली मंत्र है ये ब्रह्मा जी ने स्वयं उन्होंने मुझे सिखाया है और वहां से मैं आपको दे रहा हूँ। तो जीवन में आपको कभी भी शत्रुओं पर वार करना है तो इस मंत्र का उच्चारण करने से अलग अलग शक्ति आपको आएगी और आप कोई भी शत्रु का बड़ी आसानी से आप उसको मार सकते हो। ऐसा करके उनको बताते हैं और फिर बताते हैं कि पहली रात को वो वहां पर सरायू नदी के तट में बहुत ही सुंदर जगह है, वहां पर सब लोग सोए हुए रहते हैं और रात के समय पर एक बार जब विश्वामित्र मुनि उठते हैं, जस्ट अभी सुबह होने वाला है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, और राम और लक्ष्मण के सुंदर मुख को देखते हैं, वो इतना आनंदित हो जाते हैं प्रभु रामचंद्र जी की सुंदरता को देखकर। वो सोचने लगते हैं कि जो कौशल्या है, प्रभु रामचंद्र जी की जो माता है, इतनी सौभाग्यशाली है, इतना आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया है कि हर रोज वो प्रभु रामचंद्र जी का इतना दिन तक दर्शन करने लगे। और उस समय पर ये सुंदर श्लोक जो है विश्वामित्र मुनि उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को उठाने के लिए ये सुंदर श्लोक उन्होंने गाया, जो हम श्रील वेंकटेश स्तोत्र में भी हम ये श्लोक को बार बार सुनते हैं। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमानिकम। तो इसलिए वेंकटेश स्तोत्र में भी हम ये सुनते हैं। कौशल्या सुप्रजा के, कौशल्या के जो पुत्र है सुप्रजा राम, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, तो बोलते हैं कि अभी जो सूरज है ये अभी आ चुका है। उत्तिष्ठ नरा शार्दूला, उत्तिष्ठ मतलब आप उड़ जाइए, सूरज आ चुका है। कर्तव्य दैव मानिकम, जो आपका रिलीजियस ड्यूटीज है आपको उसको अभी जाकर करना है, तो कृपया करके आप उड़ जाइए। तो इस तरीके से ये जो सुंदर श्लोक है, विश्वामित्र मुनि सरायू के तट पे वहां पर सुबह सुबह ये श्लोक को उच्चारण करके प्रभु रामचंद्र और जो लक्ष्मण है इन दोनों को उठाते हैं और फिर वहां पर इन लोग सब निकलते हैं और फिर विश्वामित्र मुनि उनको लेकर जाते हैं और फिर अलग अलग आश्रम में लेकर जाते हैं। तो एक आश्रम के पास में वहां पर आते हैं तो प्रभु रामचंद्र जी विश्वामित्र को पूछते हैं ये कौन से ऋषि का आश्रम है। तब विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि बहुत साल पहले इस स्थान पर जहां पर आप अभी खड़े हो वहां पर शिव जी ने कामदेव को जला दिया था। तो इसीलिए शिव जी, कामदेव का जो नाम पड़ गया अनंग, अनंग मतलब जिसका कोई शरीर नहीं है, अंग नहीं है, क्योंकि कामदेव ने आकर शिव जी के तपस्या को भंग करने का प्रयास किया और शिव जी को काम वासना में प्रलोभन करने का प्रयास किया। इसलिए शिव जी ने अपनी आंख खोलकर कामदेव को यहाँ पर जला दिया। तो ये जगह यहाँ पे है। ऐसे करके अलग अलग जगह पर राम और लक्ष्मण को वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषि उस जगह का जो कहानी है, उस जगह से संबंधित उसके बारे में वो बता रहे थे। ऐसे चल के जब जा रहे थे तो एक जगह पर ये जो असुर थे वहां पर आक्रमण करने लगे। तो ये ताटक नाम का जो असुर था वहां पर आकर यज्ञ में अलग अलग तरीके से ऋषि मुनियों को तकलीफ दे रहे थे और विश्वामित्र मुनि ने राम और लक्ष्मण को बता कर रखा था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ताटक, मरीच, सुबाहु ऐसे अलग अलग असुर आकर इस स्थान पर सारे ऋषि मुनियों को और मुझे बहुत सारा तकलीफ देते हैं। तो
कृपया करके आप उनको कैसे ना कैसे उनको आप परास्त कीजिए और उनको आप मार दीजिए। यही आपका मुख्य कारण है जिसके लिए दशरथ महाराज से मैं उनको आपको मांग कर लाया था। तो आप ऋषि मुनियों को यज्ञ में जो तकलीफ है, जो बाधाएं हैं, उसको आप दूर करेंगे तो सारे ऋषि मुनि गण जो है आपको प्रचुर मात्रा में और आशीर्वाद देंगे, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से वो जन कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो उसमें कोई बाधा डाल रहा है, उसको अगर कोई दूर कर रहा है तो उससे आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। तो कृपया करके आप कीजिए। तो ऐसे करके वो प्रभु राम और लक्ष्मण जो है, ये तीनों जो असुर है, इनको पूरा वो मार देते हैं। तो उस समय पर प्रभु रामचंद्र जी वहां से निकलकर, वहां से चलकर जाते हैं और फिर वहां से जाते समय पर एक आश्रम के वहां पर पहुंचते हैं और वापिस से वो पूछते हैं प्रभु रामचंद्र जी कि ये किसका आश्रम है। विश्वामित्र जी आप कृपया करके बताइए, ये आश्रम में कौन रहता है। तो उस समय पर वो बताते हैं कि ये जो आश्रम है गौतम ऋषि का आश्रम है। तो गौतम ऋषि इस आश्रम में थे और उनकी पत्नी के साथ अहल्या। लेकिन एक दिन जब गौतम ऋषि कहीं दूर जाते हैं कुछ काम से, उस समय पर इंद्रदेव जो होते हैं अहल्या की सुंदरता को देखकर बहुत आकर्षित हो जाते हैं और वो गौतम ऋषि का रूप को धारण करके अहल्या के इस आश्रम में, गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो इंद्र को देख तो जो अहल्या होती है उसे पता चलता है कि ये गौतम ऋषि नहीं है, ये वास्तव में इंद्र है जो गौतम ऋषि का रूप को धारण करके आज यहाँ पर आश्रम में आए हैं। लेकिन जो अहल्या होती है उसके मन में कुछ क्षण के लिए विचार आता है कि ये तो साक्षात देवराज इंद्र है, इनके साथ भोग करना का अनुभव कैसा रहेगा। ऐसे कुछ क्षण के लिए विचार आता है और फिर इंद्र जो है वो गौतम ऋषि अहिल्या के साथ भोग करते हैं और वहां से वो चले जाते हैं। वो जब चले जाते हैं तभी उस समय पर गौतम ऋषि वहां पर आते हैं और अपनी योग सिद्धि के बल से उनको पता चलता है वास्तव में क्या घटना घटी। तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। तो समय पर वो इंद्र को भी श्राप देते हैं और अपनी पत्नी जो है अहल्या उसको भी श्राप देते हैं कि आप जो है यहाँ पर पत्थर बन के रहोगी। और जिस दिन तो अहल्या बहुत ही उनको बुरा लगता है, वो क्षमा मांगती है, कृपया करके मुझे आप माफ कर दीजिए। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जब प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पर आएंगे और फिर वो जब स्पर्श करेंगे तब वास्तव में पुनः आपको आपका एक स्त्री का जो रूप है आपको वापिस से मिल जाएगा। तो ऐसा करके वो उनको एक वरदान भी देते हैं। और फिर उस स्थान पर जब आते हैं प्रभु रामचंद्र, विश्वामित्र मुनि, लक्ष्मण तीनों, वहां पर अहल्या जो है उस समय पर उनका पुनः जो रूप है पत्थर से फिर से प्रभु रामचंद्र जी के स्पर्श के साथ वापिस से वो चालू हो जाता है। और फिर अंत में जो बाल कांड का सबसे आखिरी जो लीला वाल्मीकि जी ऋषि हमको बताते हैं वो है धनुष्य का लीला, जहां पर चलते चलते जब राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि जब वहां से जाते हैं तो जो जनक महाराज का जो मिथिला नगरी है वहां पर जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद वहां पर देखते हैं कि जनक महाराज ने प्रस्ताव रखा हुआ रहता है। कौन सा प्रस्ताव? जो शिव जी का धनुष चाप जो है, शिव जी के धनुष चाप को कोई अगर उसको लाकर उसको बांधेगा तो वही व्यक्ति उसको कोई अगर तोड़ सकता है तो वो सीता के साथ विवाह कर सकता है। क्यों ये प्रसंग रखा? क्योंकि ये धनुष चाप इतना शक्तिशाली होता है कि इसको उठाने के लिए हजारों लोग चाहिए होते। तो एक दिन जनक महाराज जो अपने नगरी में वहां पर बैठे हैं तो जनक महाराज को खबर मिलती है कि सीता मैया खेलते खेलते कुछ तो पेड़ पर कुछ अटक गया था, वहां पर खेल खेल का कुछ सामग्री, और सीता माता ने उस
धनुष चाप को लिया, उस पेड़ को हिलाया और वापिस से वहां पर रख दिया धनुष चाप को। और सब मंत्रिमंडल जाके जनक महाराज को कहते हैं, महाराज जी आपको पता है आज क्या हो गया? जिस धनुष चाप को उठाने के लिए हजारों हजारों मंत्री लगते हैं, आपकी कन्या ने उसको खेलते खेलते ऐसा उठा लिया और उसको पेड़ से ऐसा कुछ हिलाया, लकड़ी की तरह उसको इस्तेमाल किया। जनक महाराज ने जब सुना कि ये छोटी सी बालिका के भुजाओं में इतनी शक्ति है कि ये धनुष चाप को ऐसे उठाकर खेलती है उसके साथ, तो इससे जो विवाह करेगा उस व्यक्ति के अंदर कम से कम इतना या इससे अधिक सामर्थ्य होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत कठिन है ये जोड़ी को आगे चलना। तो फिर उस समय पर वो ये क्लॉज को रखते हैं कि कोई व्यक्ति आकर इस धनुष चाप को अगर पूरा करेगा तब ये करेंगे। तो उस समय पर जब प्रभु रामचंद्र जी आते हैं तो विश्वामित्र उनसे कहते हैं कि आप जाइए और इस धनुष चाप को आप ये करिए। और धनुष प्रभु रामचंद्र जी एफर्टलेसली वहां पर विश्वामित्र मुनि का आशीर्वाद को लेकर वहां पर उस धनुष चाप को लेकर उसको पूरा ऐसा तोड़ देते हैं। और जनक महाराज और सब लोग एकदम आनंदित हो जाते हैं कि कोई तो अंत में कोई शूरवीर व्यक्ति है जो मेरी कन्या जो सीता है। और सीता को उन्होंने कैसे प्राप्त किया था? जब वो ऐसे जमीन को खोद रहे थे, वहां से ये सुंदर कन्या स्वर्ण रूप का वैसे खड़ी थी, तो वहां से उन्होंने सीता को प्राप्त किया था। और फिर जब सीता मैया के हाथ में वरमाला होता है और प्रभु रामचंद्र जी आते हैं, तो बताते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी ऊंचे रहते हैं और सीता मैया छोटी है, तो अभी वो हाथ में वरमाला को लेकर खड़ी है कि कैसे प्रभु रामचंद्र जी के गले में डाले, समझ में नहीं आ रहा है। तो समय पर लक्ष्मण जी वहां पर रहते हैं और वो रामचंद्र जी का पैर को छूते और रामचंद्र जी उनको लेने के लिए ऐसा झुकते हैं। उस समय पर सीता मैया जो है अपना गले का जो हाथ में वरमाला है वो उनके गले में वो डाल देती है। वो डालने के बाद इन दोनों का जो विवाह है वो तैयार हो जाता है और इन लोग अयोध्या जाने के लिए वहां पर ये होते हैं। उस समय पर जब ये धनुष टूटता है तो उस समय पर जो परशुराम जी है उनको आवाज आता है कि ये धनुष जो है किसी ने तो तोड़ा है, और वो देखना चाहते हैं कि ये धनुष को किसने तोड़ा है, क्योंकि इतना जोर से आवाज आया उस समय पर। तो परशुराम जी ने घोषणा किया कि जो भी व्यक्ति ने इस धनुष को तोड़ा है उसके साथ मैं युद्ध करना चाहता हूं। और परशुराम जी अपने हाथ में उनका परशु को लेकर वो वहां पर आ जाते हैं और आकर देखते हैं कि ये रामचंद्र जी ने इस धनुष को तोड़ा है। तो बोलते हैं कि मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। उस समय पर रामचंद्र जी और परशुराम जी दोनों ये युद्ध करते हैं और लंबे समय तक पूरा युद्ध चलता है। उसके बाद फिर परशुराम जी और रामचंद्र जी को आशीर्वाद देते हैं कि आप जो है सुखी रहो, ऐसा करके। तो इस लीला के साथ हम देखते हैं कि बाल कांड जो है यहाँ पर समाप्त होता है, जहाँ पर परशुराम जी और प्रभु रामचंद्र जी की जो मुख्य मुख्य जो लीलाएं हम देखते हैं बाल कांड में। फिर यहाँ से वो अयोध्या में सीता को लेकर प्रभु रामचंद्र जी और वो जाते हैं। लेकिन बाल कांड में मुख्य रूप से हम ये देखते हैं, सीखते हैं कि दशरथ महाराज के मुख्य जीवन में ये सब कुछ होने के बावजूद भी दशरथ महाराज जो है, पहले उनके जीवन में एक समस्या थी कि उनको प्रभु रामचंद्र जी नहीं मिल रहे थे। वो इच्छा एक पूरी हो गई, लेकिन फिर से एक जीवन में और एक मोड़, जहां पर उनके पास रामचंद्र जी आने के बाद वो चले गए। तो वो एक शिक्षा हम देखते हैं कि जीवन में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ नहीं चलता है, कभी कुछ है कभी नहीं है, उतार चढ़ाव। वो एक शिक्षा हम देखते हैं। फिर कैसे प्रभु रामचंद्र जी बहुत सुंदर तरीके से अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि की आश्रम में जाकर सब कुछ एक आदर्श शिष्य को गुरु की कैसी सेवा करनी चाहिए और संतुष्ट करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, वो एक आदर्श शिष्य का रोल को निभाकर गुरु की नम्रता से सेवा करके
वशिष्ठ ऋषि से सब कुछ कलाओं का 64 कलाएं उससे स्वीकार करते हैं और फिर उसको विश्वामित्र जी की सेवा में उस कला को उसको इस्तेमाल करते हैं अलग अलग राक्षसों को असुरों को मारने के लिए। तत्पश्चात उनके गुरु का आशीर्वाद लेकर प्रभु रामचंद्र जी जो जनकपुर में जाकर सीता मैया को भी उनसे विवाह करते हैं और वो भी इच्छा को उनका पूरा करते हैं और फिर वो करके फिर वो डायरेक्ट फिर अयोध्या में आते हैं जहाँ पर दूसरा अयोध्या कांड वहां पर शुरू होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जय। हरे कृष्णा। मेरा नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहा था तो मैंने वीडियो को थोड़ा ये कर दिया ताकि एटलीस्ट ऑडियो भी चले। Yeah, the nectar was flowing, Prabhu. हरे कृष्णा। सॉरी फॉर द वीडियो शट डाउन। तो अभी कोई भी भक्त कोई प्रश्न पूछना चाहता है प्रभु जी से तो जरूर पूछ सकते हैं। प्रभु रामचंद्र के जीवन के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके कोई भी अगर प्रश्न है तो अभी जरूर पूछे। और अगर कोई भक्त प्रभु जी से जो है चर्चा करना चाहते हैं, उनको हरे कृष्णा बोलना चाहते हैं, तो अभी आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। Pratapudra Prabhu, यस प्रभु जी। I don't have a question, but I know one point that really stuck me. हरि गोपाल प्रभु ने जो बताया कि उन्होंने जो शुरुआत किया था, just the way he started, that Lord राम, भगवान राम जो है वो प्रण लेते हैं और उनका प्रण मतलब ही इज फेमस, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सो वो हरिगोपाल प्रभु ने when he said that ना, it really struck me कि उन्होंने प्रण लिया है कि अगर भक्त कोई एक बार, सिर्फ एक बार आके बोल दे कि आई एम योर्स, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो आई रियली थैंक यू सो मच प्रभु। इट्स सो मच रिलेवेंट टू प्रिपेयर आवर कॉन्शियसनेस फॉर रामनवमी कि सिर्फ एक बार रामनवमी के दिन जो आ रहे हैं, हमको जाके सिर्फ बोलना है कि मैं देव प्रपन्नोयम तव अस्मि इति याचते, तव अस्मि याचते। Just once. So nice, Prabhu. Once. Such a nice, brilliant thing. Thank you so much, Prabhu. Thank you. And of course, the other theme the common theme that you built as, that in our lives there will be ups and downs. कभी life steady नहीं होगा। ये तो मतलब दशरथ महाराज के लाइफ में भी ऊपर नीचे हुआ है, तो हमको भी prepared रहना चाहिए। But this point really stuck, Ramnavami is coming and I just have to go before their lordships and say once. Oh Lord, I am yours. And then he is taking a vow. Matlab, that is like such a big benediction. You should tell twice, for you once and for me once, that I am also his. Because when you tell, then Hari Gopal is also trying to surrender. So twice you should tell. सब लोग दो बार बोला, एक लाख आप लोग के लिए और एक बार मेरे लिए। So that मैं दो बार बोलेंगे तो yes, मेरे लिए एक बार। मैं दो बार बोलूंगा, मैं बोलूंगा प्रभु लॉर्ड राम, आई एम योर्स, एंड देन आई विल से दिस इज व्हाट हरि गोपाल प्रभु टोल्ड मी टू टेल यू। अरे when devotees pray, then Lord can accept fallen people like us also. There is no hope. Yes, that is so correct, Prabhuji, so correct. I had one question, but it is there are two parts, like it can be a spiritual question from your lecture also, and it can be related to current situation of Ayodhya material world also. So is it fine if I ask you directly in this forum, or I can try? If I cannot, then Siddha Swarup Prabhu and other senior devotees, they are always there. Yeah,
So, Prabhuji, you mentioned about the opulences of Ayodhya, like, you know, how Ayodhya was that time, how it was decorated, and like, you know, you mentioned about the elephants and that water like which is to be sprinkled or perfume. Yeah, that's what Valmiki ji explains. Opulence of Ayodhya. After Lord Ramchandra, when he left Ayodhya, it, you know, everything gradually degraded. All the opulences. Lakshmi ji is only Vishnu is there, right? So, where Vishnu is not there, Ramchandra ji is not there, then what is her job? She, like, you know, it can be compared that way also. So that's why that can we think in this way, because Ayodhya Nagri, as you said, Ayodhya, like no one can conquer over Ayodhya. अयोध्या कोई योद्धा है कुछ भी है, अयोध्या भगवान की नगरी है, सो उनको छोड़ के बाकी किसी का हक नहीं उसमें. हाँ. So, but how can we compare, like, you know, opulences, people that time associates of Lord Ramchandra, like, you know, whom gradually came down in Chaitanya Leela also, like, you know, they also come here as associates of Chaitanya Mahaprabhu. Murari Gupta was there. Was a devotee of Lord Ram. So that opulence is gradually when it came down. You know, how we should look into that. Ki, that opulence when Lord Ramchandra left Ayodhya and it degrading. Is that, like, you know, Kaliyuga also to build the temple again or to regain, like, you know, this is in the motive. So yeah, I understood the question. One thing what I remember is maybe Siddheshwar Prabhu, Siddha Swarup Prabhu can also add, especially regarding Dham. Whenever we look at a Dham, it is said that we cannot truly see the Dham based on our material eyes. What the Dham really is and what we see, they are both two different things. जो धाम वास्तव में है उसका ऐश्वर्य और जो भी सौंदर्य इत्यादि, और हम क्या देख रहे हैं, तो इसलिए धाम में हमेशा एक योग माया का कर्टन रहता है. हाँ, जैसा वृंदावन धाम के बारे में बताया जाता है कि वृंदावन धाम में एंटर करने के लिए शिवजी जो है क्षेत्रपाल, मथुरा में भूतेश्वर महादेव और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव और गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, नंदगांव में आशेश्वर महादेव, तो सिक्योरिटी. तो जो भक्त जिसका चेतना सही तरीके से ट्यून्ड इन नहीं है, वो वास्तव में धाम का ट्रू ऑपुलेंस, सच्चा ऐश्वर्य को नहीं देख सकता है अपने ये चर्म चक्षु से. अयोध्या का जो वर्णन उस समय पर त्रेता युग के समय पर लाखों साल के बाद अब हम देख रहे, सब कुछ दिव्य स्तर पर सब कुछ एज इट इज है, लेकिन मटेरियल लेवल पे हमारा वो क्वालिफिकेशन योग्यता अगर नहीं है तो हम एक्सटर्नली हम क्या देखेंगे, अरे अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है, ऐसा है वैसा है, तो सही रूप से हम धाम का उसके चीज को हम नहीं शायद देख पाएंगे. तो वो एक दृष्टिकोण से मैं एक देख सकता हूँ. मे बी सिद्ध स्वरूप प्रभु, सिद्धेश्वर प्रभु, you all can add. Yeah, so धाम को सुनना चाहिए, ये मतलब है, राइट? हाँ, धाम का जो ऑपुलेंस है वो हमेशा रहता है, वो हमेशा सुनना चाहिए, सुनने से पता चलता है. हाँ, और धाम का ऑपुलेंस हमेशा रहता है, लेकिन हम देख पाएंगे क्या, हमारा क्वालिफिकेशन के ऊपर हमें वो रिवील होगा धाम का ऑपुलेंस. तो फॉर एग्जांपल समझो मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं धाम को इस चक्षु से देख पाऊं, लेकिन जो हियरिंग का जो पावर जो भगवान ने मुझे दिया है, समझने का मुझे इंटेलिजेंस दिया है, अगर सबसे अगर मैं धाम को देखूं शास्त्र के चक्षु से, शास्त्र या एक प्योर डिवोटी की नजरों से अगर मैं धाम को देखूं, अगर शुद्ध जो धाम बताता है तो रियल ऑपुलेंस, राइट? जैसा आता है विषया छाड़िया कबे
शुद्ध हबे मन तबे हमें हेरिबो श्री वृंदावन। तो वृंदावन धाम के बारे में आता है, विषया छाड़िया कबे, जब विषय वासनाओं से हमारा जितना तक इच्छा कम होगा तब वास्तव में हम वृंदावन देख सकते हैं। और महाराज जी के क्लास में ही बताते कि वो जर्मन ट्रैवलर है, उसने वृंदावन धाम के बारे में सुना था कि वृंदावन ऐसा है, चिंतामणि धाम है, और पूरा जो ब्रह्म संहिता का हम गाते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभी पालयंतम। तो वो जर्मन से वो ट्रैवलर सोचता है चलो मैं जाता हूँ, तो इतना प्रयास करके जर्मनी से आता है दिल्ली, दिल्ली से वृंदावन आता है, वो देखता है चर्म चक्षु से, और वो क्या देख रहा है, अरे यहाँ पर कोई सुअर है, वो यहाँ पर गटर है, यहाँ बंदर है, तो वो ये सब चीज को देखता है और फिर वो सोचता है अरे जो मैंने धाम के बारे में सुना था प्रवचन में और जो मैं अभी देख रहा हूँ ये पूरा अलग ही डिस्क्रिप्शन है। तो वो इतना वो एक्सटर्नल लेवल पे धाम को देखकर इतना उसको बुरा लगने लगता है और उसको एकदम डिस्गस्टिंग लगता है। सुबह पहुंचता है वृंदावन, शाम को बैक, वृंदावन से मथुरा, दिल्ली, दिल्ली से बैक टू जर्मनी। 2-3 दिन में उसका 2 दिन में उसका ट्रिप खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो नहीं है उसका वो लेवल। तो महाराज हमेशा एक यात्रा के क्लास में मुझे याद है ओपनिंग, हाउ डू वी सी धाम, हम अभी वृंदावन आए हैं तो कैसे हम वास्तव में वृंदावन को देख सकते हैं, इसका योग्यता क्या है, वास्तव में शास्त्र क्या लिख रहा है, धाम क्या है और हम अभी अपने आंखों से क्या देख रहे हैं। तो ये जो गैप है कैसे हमें इसको भर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए धाम को जब सेवा के भावना से जाना है, हाँ, ऐसा नहीं कि हम एक टिकट लेकर धाम में पहुंच सकते हैं, नहीं, लेकिन जितना हम सेवा की भावना से जब धाम में जाते हैं तब धीरे धीरे धाम जब हमें रिवील करता है, जब शिव जी का हमें कृपा मिलता है, क्षेत्रपाल शिव जी जब कर्टन खोलते हैं तभी वास्तव में जो दिव्यत्व है धाम का, वो दिव्यत्व हमें देखने को मिलता है। ओ वृंदावन, अयोध्या, एक एक जो कण है ये चिंतामणि है, जो यहाँ पे गैया है ये सब सुरभि अभिपालयंतम, ये जो पेड़ है ये सब कल्प वृक्ष है। तो हर एक चीज का जो दिव्यत्व है वो एक्चुअली इट इज रिवील्ड, हम अपने आंखों से उसको नहीं देख सकते। तो ये वृंदावन, अयोध्या, द्वारका, मायापुर, जगन्नाथपुरी, ये सारे धामों के लिए जो सिद्धांत है वो यही हमारे आचार्यगण बताते हैं कि हम नहीं देख सकते अपने चर्म चक्षुओं से धाम को, लेकिन जब भावना सही है और एक सेवा करते हैं धाम में, और धाम जब रिवील करता है तब पता चलेगा अरे ये लीलाएं तो सारी चल रही है, नित्य लीला चल रही है धाम में। कितने सारे साधु संत है वहां अभी भी भगवान की सारी लीलाओं को धाम में एज इट इज वो देख रहे, लेकिन हम नहीं देख पा रहे। लेकिन जिनकी योग्यता है उन लोग आज भी कृष्ण की लीला वृंदावन में, प्रभु रामचंद्र जी की लीला अयोध्या में, ऐसे बहुत लोग हैं जो देख पा रहे। तो इसके लिए वही डिफरेंस है हमारे में और उनमें। तो does that answer the question? Yes, yes, definitely. I was just thinking, मैं वही सोच रहा था, मैं अगर यहाँ बैठे आज मैं समझो धाम दर्शन कर सकता हूँ आपकी कृपा से, you know how you the धाम today कि अयोध्या पॉपुलेंस क्या था जो आज भी है, वो कोई चीज या like you know nothing really whatever comes in that land पॉपुलेंस है, वो कोई कभी भी जिसको कोई लेके नहीं जा सकता या वो हट भी नहीं सकता हूँ बराबर नहीं, उसका अंत ही नहीं उसका। सो लाइक यू नो कि वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम यहाँ पे बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं और हम पर्सनली वही यात्रा में अब भी जा सकते हैं। हमारा सौभाग्य है, कुछ कुछ मैं जो वेस्ट से डिवोटीज आते हैं उनको मिलता हूँ, और कुछ कुछ भक्त बताते हैं कि उनके जो वेस्ट में रहते हैं कितने लोग पूरा जीवन का अपना पैसे को जमा करते हैं ताकि एक बार लाइफ में उनका इच्छा है कि एटलीस्ट वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी ये धाम को देख सके।
तो कितने सारे बताए प्रभुपाद के शिष्य है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस एक भी बार वो अभी तक कभी इंडिया आ नहीं पाए धाम का दर्शन करने के लिए। केवल वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, और बाकी जो लोग जाके आए केवल उनसे सुन के ही उन्होंने अभी तक धाम का दर्शन किया है। कितने सारे प्रभुपाद के शिष्य अभी तक आ नहीं पाए धाम दर्शन के लिए। तो ऐसे लोग हैं। और कितने लोग जीवन भर में एक बार आकर दर्शन करके गए। तो उस दृष्टिकोण से हम देखते तो कितना हम नजदीक है, हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें एक बेटर देन एक कम एफर्ट में हम जाकर आ सकते हैं। तो इसीलिए एक कृपा है हमारे ऊपर, हमको मिला है। तो वी शुड बी ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना चाहिए कि एक भारत जैसी नगरी में हमने जन्म लिया है। अयोध्या, द्वारका, मथुरा, पुरी, वृंदावन, मायापुर, ये सब धाम अभी उपलब्ध है हमारे लिए। अभी जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा धीरे धीरे सब लुप्त होगा। पवित्र नदियां लुप्त हो जाएगी, सारे धाम लुप्त हो जाएंगे। तो ये सब जैसे रूप गोस्वामी 5 अंगों में से भक्ति के लिए धाम का दर्शन, धाम की सेवा, 5 शक्तिशाली अंगों में से एक अंग बताते हैं, धाम में जाना, उसका दर्शन करना। तो अभी ये उपलब्ध है, कब तक रहेगा पता नहीं। तो जब तक है तब तक हमें उसका पूरा फायदा लेना चाहिए। धाम में जाकर धाम की सेवा करने का, सेवा भाव में जाकर वहां पे भगवान का कथा कीर्तन सब करने का अवसर पूरा यूटिलाइज करना चाहिए।